got you. Now, look here. But, Mom... Close the window, John. To Sherlock Holmes, she was always the woman, the beautiful Irena Adler, of dubious and questionable memory. At the time of our involvement in the Irena Adler case, Holmes and I had been sharing rooms in Baker Street for some years. My practice had caused me to be absent in the country for several days. As usual, after leaving Holmes for any length of time, I returned filled with apprehension as to his mood. Oh, hello, Mrs. Hudson. Dr. Watson, just look at you, half soaked to the skin. Yes, well, I'm not surprised. I have just spent 20 minutes standing in the pouring rain waiting for a cab. Won't do that old wound of yours any good getting so wet, Doctor. Oh, no. Just take this coat and your hat. See that they're properly dry. Mrs. Hudson, I haven't eaten all day. Do hope supper will be up very soon. That's very doubtful. I don't know what's come over Mr. Holmes. He seems to be all on edge. I'm not to bring up supper until I'm called. Those are his orders. Thank you, Mrs. Hudson. My dear Holmes. What is it tonight? Morphine? Or cocaine? Well, I can strongly recommend a 7% solution of cocaine. Would you care to try it? No, indeed. I speak not only as your friend, but as a medical man. How can you risk such damage to the great powers with which you have been endowed? I cannot tell you how it clarifies and stimulates the mind. Yes, and destroys it in time. My mind rebels at stagnation. Give me problems. Give me work. Give me the most abstruse cryptogram, the most intricate analysis, and I'm in my proper atmosphere. Then I can dispense with artificial stimulants. But I abhor the dull routine of existence. I crave mental exaltation. That is why I've chosen my own profession, or rather, created it, for I am the only one in the world. The only unofficial detective. The only unofficial consulting detective. I take no credit in my cases. The work itself, the pleasure of finding a field for my particular powers is my highest reward. You can close that drawer. You have made the wrong diagnosis, Doctor.
I have my stimulant here. I hope you enjoyed your week in the country. It was good for the appetite. Incidentally, I do wish you would ring for supper. What is this? Means I must get ready for my visitor. It came by the Morning Post. Give me your observations. Well, I mean, it's undated and without either signature or address. Good. Read it aloud. Dear Mr. Holmes, there will call upon you tonight at 7:15 a gentleman who... Good heavens, we've only a few minutes, Holmes. Go on. A gentleman who desires to consult with you upon a matter of the very deepest moment. Your recent services to one of the royal houses of Europe have shown that you are one who may be safely trusted with matters which are of an importance which can hardly be exaggerated. This account of you we have from all quarters received. Be in your chamber, then. Good heavens, this is a mystery indeed. What do you imagine it means? Well, I have no data yet. It is a capital mistake to theorize before one has data. But the note itself, what do you deduce from it? It's a man's writing. Good. Presumably well-to-do. It's expensive paper, this. It's peculiarly strong and stiff. Peculiar, that is the very word. It is not English paper at all. Hold it up to the light. Ah. Large E, small g, large P and G with a small T woven into the texture. And that is? Maker's monogram. Excellent, Watson. Come along. Let us consult our Continental Gazetteer. Your cigars. You see, I was not unmindful of your return. Oh. Would you care for some whiskey? Later, perhaps, when we've eaten. The monogram is an abbreviation for Papiergesellschaft, which is the German for paper company. And the E.G. Eglonitz Egria. A German-speaking district of Bohemia, noted for its numerous glass factories and paper mills there. Bohemia? The Kingdom of Bohemia? And the note is written by a German. You see, this account of you we have from all quarters received. Only a German is so uncourteous to his verbs. So we are to expect a German from Bohemia? Here he is. Drawn by a pair. A nice little broom. There's money in this case, Watson, if there's nothing else. Holmes, I think your visitor will want me out of the way. Not a bit, Doctor. Stay where you are. I am lost without my Boswell. But he sounded so secretive. I may need your help, and so may he. Now stay in that armchair and give me your full attention. Here he comes. I'm sorry, sir, but you cannot come in here unannounced like this. Mr. Holmes does not see anybody without appointment. Mr. Holmes, there was nothing I could do. It's perfectly all right, Mrs. Hudson. If you would kindly leave us and close the door. Thank you. You had my note? Yes. Pray take a seat. This is my friend and colleague, Dr. Watson, who is occasionally good enough to help me in my cases. How do you do, sir? Whom do I have the honor to address? You may address me as the Count von Kramm, a Bohemian nobleman. I should much prefer to communicate with you alone. No, it is both or none. You may say before this gentleman anything which you may wish to say to me. Very well, I take your word that he is a man of honor and discretion.
But I must begin by binding you both to absolute secrecy for a period of 2 years. Indeed. At the end of that time, the matter will be of no importance. At present, it is of such weight that it may have an influence upon European history. I promise. And I. You will excuse this mask. The august person who employs me wishes his agent to be unknown to you. In fact, I may confess that the title I've given you is not exactly my own. I was aware of that. The circumstances are of great delicacy. Every precaution must be taken to prevent an immense scandal which would seriously compromise one of the royal houses of Europe. To speak plainly, the matter concerns the great house of Ormstein, hereditary kings of Bohemia. I was aware of that too. Your Majesty. आपने ठीक पहचाना। हम ही राजा हैं। भला आपसे इस बात को हम क्यों छुपाएंगे? हाँ, क्यों छुपाएंगे? आपके बोलने से पहले योर मैजेस्टी मुझे मालूम था कि मैं विल्हेम गॉट्सराइक सिग्समॉन्ड वॉन ऑर्मस्टाइन से बात कर रहा हूं, जो कासल फॉल्स्टाइन के ग्रैंड ड्यूक और बोहेमिया के हेरिडिटरी किंग हैं, और उसके साथ ही यूरोप के महान योद्धा भी। आप अपने 4 प्रतियोगियों को मार चुके हैं। इज्जत के साथ। क्यों नहीं? अब हम आपको असली बात बताते हैं। करीब 10 साल पहले हम लंबे समय के लिए वॉर्सॉ गए थे। उस दौरान हमारी मुलाकात एक रोमांच प्रेमी महिला एरेना एडलर से हुई। उनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। वॉटसन, उनका नाम मेरे रजिस्टर में देखना जरा। तो मैं ये मानता हूं कि योर मैजेस्टी उस महिला से रिश्ता बना बैठे, उसे कुछ प्रेम पत्र लिखे और अब उन खतों को वापस पाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको कैसे पता चला? अबिनेरी, इटालियन जनरल स्टाफ, एडिसन, एडलर एरेना, जन्म न्यू जर्सी 1858। मेरे ख्याल से वही है। न्यू जर्सी, देखने दो। एक सिंगर, कॉन्ट्राल्टो, भाग लिया ला स्काला में, पीटर्सबर्ग और वॉर्सॉ के ओपेरा हाउसेस में। अब स्टेज से रिटायर हो चुकी हैं, लंदन में रहती हैं और कभी कभी स्टेज पर गाती हैं। यही वो महिला है। क्या आपने उनसे चोरी छिपे शादी की थी? नहीं। कोई कानूनी कागजात या सर्टिफिकेट? नहीं। फिर मुझे यह समझ नहीं आया योर मैजेस्टी कि अगर ये महिला आपको ब्लैकमेल करने या किसी और मकसद से वो खत दिखाएंगी तो कैसे साबित करेंगे कि वो आपके ही हैं? लिखावट तो हमारी है, बनाई गई होगी। हमारा मोनोग्राम वाला कागज चुराया गया, हमारी खुद की मोहर नकल की गई, हमारी तस्वीर खरीदी गई। लेकिन हम दोनों उस तस्वीर में एक साथ हैं।
तो बहुत बुरा हुआ, वाकई बहुत बुरा। योर मैजेस्टी से यह वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। वो खूबसूरत थी, आकर्षक, चालाक, निडर। उस समय हम सिर्फ युवराज थे, नौजवान थे, और अब हम 30 साल के हैं। जाहिर है योर मैजेस्टी ने तस्वीर हासिल करने की कोशिश की होगी। कोशिश तो की, पर नाकाम रहे। तो तस्वीर के दाम दे दीजिए, उसे खरीद लीजिए। वो उसे नहीं बेचेगी। तो चुरा लीजिए। 5 कोशिशें की जा चुकी हैं। 2 बार हमारे आदमियों ने उसका पूरा घर छान डाला। 1 बार तो उसका सामान ही छीन लिया। 2 बार रास्ते में उसका सामान चोरी किया गया, लेकिन तस्वीर हमें नहीं मिली। हंसते क्यों हो? ये मजाक नहीं है। जी हाँ, ये मजाक नहीं है, मामला बहुत संजीदा है। लेकिन अगर वो ब्लैकमेल नहीं करना चाहती तो उस तस्वीर को रखने का फायदा क्या है? हमें बर्बाद करना। कैसे? हमारी शादी होने वाली है। ओह, राजकुमारी क्लॉटिल्ड लॉथमैन वॉन सॉक्स मेनिगन से, जो स्कैंडिनेविया के राजा की दूसरी बेटी हैं। जोड़ी कमाल की रहेगी। ठीक कहा, लेकिन उनके परिवार के नियम बहुत कड़े हैं। वो खुद नर्म दिल हैं, पर हमारे चरित्र को लेकर अगर जरा सी भी गलत बात उन तक पहुंची तो बात बिगड़ सकती है। और एरेना एडलर उन्हें तस्वीर को भेजने की धमकी दे रही हैं, और भेज भी देंगी। उनका दिल पत्थर का है। वो दुनिया की सभी महिलाओं से खूबसूरत हैं, और किसी भी आदमी से ज्यादा सख्त दिल। वो कोई भी तरीका अपनाने से हिचकेंगी नहीं, कोई भी, ताकि हमारी शादी किसी और से न हो सके। योर मैजेस्टी, ये महिला आपसे बदला क्यों लेना चाहती हैं? हाँ, एक बार उनसे शादी की बात जरूर हुई थी। हाँ, वो समझ नहीं रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपको यकीन है कि उन्होंने तस्वीर अभी तक नहीं भेजी है? हमें यकीन है। कैसे? हो सकता है वो अभी भेजी जा रही हो। क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो उस तस्वीर को उस दिन भेजेंगी जिस दिन इस शादी की घोषणा जनता के सामने होगी, मतलब अगले सोमवार को। और इस समारोह में पहुंचने के लिए मुझे शुक्रवार को लंदन से जाना होगा। ओह, तो मतलब हमारे पास 3 दिन है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तहकीकात करने के लिए मेरे पास अभी कुछ और मामले भी हैं। योर मैजेस्टी से मैं लंदन में कहां मिल सकता हूं? आप लैंगम होटल में आए, लेकिन वहां मेरा नाम काउंट वॉन क्रम है, समझे? जी हाँ, जरूर। और हमारे खर्चे का बंदोबस्त? इसमें 300 पाउंड का सोना है, और इसमें 700 पाउंड नकद हैं। और मिस एरेना एडलर का पता? गुड नाइट योर मैजेस्टी। मुझे यकीन है कि हम जल्दी आपको अच्छी खबर देंगे।
होम्स, हम बाहर कहीं अच्छी जगह खाना खा सकते हैं, पर हमारे पास 3 दिन बचे हैं, शुक्रवार तक। उसकी तुम चिंता मत करो। कंपोजर चाउकोव्स्की सेंट जेम्स हॉल में अपना संगीत पेश करने वाले हैं। उससे पहले यह काम हो जाना चाहिए। माय डियर वॉटसन, मैं अकेले रहना चाहूंगा। तुम्हें भूख लगी है? हाँ। मिसेस हडसन तुम्हारे लिए एक सैंडविच बना देंगी। सैंडविच? हम कल दोपहर तक इस मामले के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। गुड नाइट। क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? नहीं है। करना चाहोगे? मैं तुम्हारी जगह लेना पसंद करूंगा। तुम कब से ये काम कर रहे हो? 2 महीने से, और मैं चकाचक काम करता हूं। ओह, ये बात है। चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। देखते हैं कितना दम है। ठीक है, पर शराब के पैसे दे देना। मुझे लगा तो शराब मांगोगे। घोड़े को साफ करो, देखते हैं क्या काम कर सकते हो। मैं कई घंटों तक घोड़ा गाड़ी वाले और उसके दोस्तों के साथ रहा। उस इलाके में मिस एरेना एडलर के कई दीवाने रहते हैं। मेरे ख्याल से वह दुनिया की सबसे सुंदर महिला है। ऐसा कहने वाला सिर्फ मैं ही नहीं, और बहुत से लोग हैं। वो अकेली रहती हैं, शाम के 5 बजे बाहर जाती हैं और ठीक 7 बजे लौट आती हैं डिनर के लिए। गाने का शो करने के अलावा वो और कहीं नहीं जाती। उनके यहां सिर्फ एक ही आदमी आता है, और अक्सर आता है दिन में 1 बार, और कभी कभी तो 2 बार भी आता है। उसका नाम है मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन। तो देखा, घोड़ा गाड़ी वाले से दोस्ती करना कितना फायदेमंद है। मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन एक वकील हैं, ये गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली तो है। वो इतनी बार क्यों आता है? क्या वो उसकी मुवक्किल है, दोस्त या प्रेमिका? अगर वो उनका वकील है तो उसके पास वो तस्वीर हो सकती है, और अगर प्रेमी है तो उसे ये बात मालूम भी नहीं होगी।
उन्होंने गाना शुरू ही किया था। क्या मखमली आवाज है उनकी। वॉटसन, उसी समय कुछ चौंका देने वाली घटनाएं हुई। सबसे पहले एक आदमी आया, मेरे ख्याल से वो मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन था। जरा रुकना। हाँ, अभी आया। जल्दी मैडम की गाड़ी लेकर आओ। तेज चलाओ। चर्च ऑफ सेंट मोनिका एजवेयर रोड। मुझे वहां 12 बजे से 5 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। अगर जल्दी पहुंचाए तो आधी गिननी मिलेगी। बहुत खूबसूरत हैं वॉटसन। चेहरा ऐसा दिलकश कि मर मिटने को जी चाहे। चेहरा ऐसा दिलकश कि मर मिटने को जी चाहे। तुम कब से ऐसी बातें करने लगे होम्स? उदाहरण दिया है वॉटसन, और कुछ नहीं। मैं उनकी घोड़ा गाड़ी में कूदने ही वाला था ताकि पीछे छिप जाऊं कि सड़क पर एक और गाड़ी आ गई। कोचवान अपने किराए के पैसे गिन रहा था कि उसके कुछ कहने से पहले मैं गाड़ी में बैठ गया और उसे कुछ सोने के सिक्के दिखाकर मुझे 20 मिनट में चर्च ऑफ सेंट मोनिका पहुंचाने के लिए कहा। लेकिन मैं आज तक कभी इतनी तेज घोड़ा गाड़ी में इससे पहले कभी नहीं बैठा। लेकिन वो लोग तो मुझसे पहले ही पहुंच गए थे। हम कुछ भी नहीं कर सकते मिस्टर नॉर्थन। तो कीजिए, दोपहर हो गई है। कानूनी रूप से समय खत्म होने वाला है। गाड़ी वाले को बुला सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था वो हमारी बातें सुने, इसलिए मैंने उन्हें चाय पीने के लिए भेज दिया। अब क्या करें? किसी को बुलाओ। तुम इधर आओ। हाँ, तुम ही। हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, जल्दी आओ। सोचो मत, जल्दी आओ। इसे पकड़ो और जैसा कहा जाए वैसा करो। तुम्हें इसके लिए पैसे मिल जाएंगे। ओह, तो हमें गवाह मिल गया। अब हम शादी की रस्म पूरी कर सकते हैं। प्रियजनों, हम यहां ईश्वर के सामने उपस्थित हुए हैं ताकि इस पुरुष और इस स्त्री को विवाह के पवित्र बंधन में बांध सकें, जो कि ईश्वर के नाम में मनुष्य द्वारा बनाई गई ऐसी संस्था है जो हमेशा ही क्राइस्ट और चर्च के बीच एक अनूठे बंधन का एहसास दिलाती है। एरेना, मैंने तुम्हें अपनी जिद पूरी करने दी, अब तुम मुझे अपनी जिद पूरी करने दो। मैं तुमसे कल मिलूंगी। जल्द से जल्द हम मिलेंगे। आई लव यू।
जॉन। सुनो, तुम जरा इधर आओ। इधर आओ। गॉडफ्री, ठहरो। सर, आपका बहुत शुक्रिया। जब हमें आपकी जरूरत थी आप वहां मौजूद थे। आप ही की वजह से हमारी शादी हो पाई। मुझे जाने की जल्दी नहीं। ये रख लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे आपसे टिप नहीं चाहिए मैम। देखिए, हमारी तरफ से ये छोटा सा नजराना है। उन्होंने मुझे सोने का सिक्का दिया। ये देखो। आज इतनी अजीबोगरीब बातें क्यों हो रही हैं? मैं इसे एक यादगार के तौर पर अपनी घड़ी की चेन में लगाऊंगा। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? उस शादी के समय मुझे लगा कि मेरा प्लान चौपट हो गया है। अगर वो फौरन ही निकल जाते तो मुझे कुछ सोचने का या करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। मगर नॉर्टन वापस चला गया और एरेना अपने घर चली गई, तो इस तरह मुझे कुछ करने का मौका मिला। कैसे? डॉक्टर, इस समय मुझे तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कानून तोड़ने में कोई एतराज? ज्यादा नहीं। और पकड़े जाने का डर? वजह अगर अच्छी हो तो नहीं। वजह शानदार है। तब तो कुछ भी करवा लो। बहुत अच्छे। अब सवाल ये उठता है कि वैसे होम्स, तुम इस लिबास में जच रहे हो। मेरा सवाल यह था कि उस तस्वीर को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि उस घर की 2 बार तलाशी ली जा चुकी है। वो उन लोगों से ज्यादा चालाक है। तो वाकई कमाल की औरत है। पर उन लोगों ने अच्छी तरह ढूंढा होगा। उन्हें ढूंढने का तरीका नहीं आता। और तुम कैसे ढूंढोगे? मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर क्या करोगे? वो मुझे खुद तस्वीर दिखाएगी। वो ऐसा नहीं करेगी। वो मना नहीं कर पाएगी। हाँ, अब हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। पैदल चलना ठीक रहेगा। तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? तुम्हारे हाथ उठाते ही मैं शुरू हो जाऊंगा और हम 10 मिनट में अपनी मंजिल पर मिलेंगे। वो आ रही है, देखो। अरे ये क्या कर रहे हो? यहाँ मैं पहले आया हूँ। इसने नहीं, पहले मैंने दरवाजा खोला था मैम। झूठ बोल रहा है मैम, मैं पहुंचा था। चलो हटो तुम लोग यहाँ से। तुम बीच में मत आओ। हटाओ इसको, यहाँ से दूर करो। मोटे, गाड़ियों के दरवाजे खोलना हमारा धंधा है और इसी से हम अपना पेट पालते हैं। तुम किसी आदमी को कमाने से कैसे रोक सकते हो? छोड़ दो मुझे। जरा रास्ता दो। हे सुनो, मेरे कोशवान को छोड़ दो। ये दरवाजा मैंने खोला है, तुमने नहीं।
अच्छा ये बात है, अभी बताता हूँ। तो छोड़ोगा नहीं, बताता हूँ तुझे। ये ले। नहीं नहीं, शांति रखिए, शांति रखिए, शांति प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं मुझे आपको समझाना होगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ, दूर हटो, जाओ जाओ। पीछे हटो, देखो तुमने क्या कर दिया। अरे ये तो मर गया। चलो भागो इससे पहले कि पुलिस आए। भागो। सांस चल रही है लेकिन गहरी चोट है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। कोई बात नहीं जॉन, वो ठीक तो है। हाँ ठीक हो जाएगा, थोड़ी देखभाल की जरूरत है। इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। अब इसे मेरे घर ले चलो, उठाओ। ध्यान से। ओह, आपको होश आ गया। ईश्वर का शुक्र है, आप एक बहादुर आदमी हैं। यहाँ ले आओ विलाट। ना तुम रहने दो, मैं खुद अपने दोस्त की चोट को साफ करूंगी। सर, क्या आप इस तरफ देखेंगे? नहीं, आप रहने दीजिए। आप इस घाव को नहीं देख पाएंगे। मैं इन चीजों से नहीं घबराती मेरे दोस्त। आप रहने दीजिए। थैंक यू। लाइए, मुझे पट्टी दीजिए। जैसा चाहे। शुक्र है आपकी चोट ज्यादा गहरी नहीं है। हल्की सी है और दर्द भी जा रहा है। कितनी अजीब बात है। क्या मैडम? इतनी छोटी सी बात पर कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। वो तो कोई गैंग था मैडम, और ये आपको लूटने की साजिश थी। इतने सारे लोग एक छोटे से पर्स के पीछे? नहीं मेरे दोस्त, उन्हें कुछ नहीं मिलता। मेरे काम ने मेरा सामना गरीब लोगों और कई अपराधियों से भी करवाया है मैडम। देखिए लोग कैसे देख रहे हैं। उत्सुकता बहुत ही खराब चीज होती है, लेकिन ये सभी इंसानों में होती है। मुझे माफ कीजिए, लगता है मुझे चक्कर आ रहा है। हवा, मुझे हवा चाहिए। विलाट, खिड़की खोलो। जाओ, थोड़ा पानी ले आओ। क्या कुछ सूंघने को मिल सकता है? मैडम, मुझे लगता है कि कुछ जल रहा है। क्या? आग! आग! हाँ, आग लग गई। आप यहाँ से बाहर जाइए, मैं इनका ख्याल रखूंगा।
अरे बाहर निकलो, घर में आग लग गई। मैं सांस नहीं ले पा रहा। देखो आग लगी है। अरे आग लग गई। आग नहीं लगी है, आग नहीं लगी है, ये किसी की चाल है। ये किसी की चाल है, उन्हें बताइए, बताइए उन्हें। आग नहीं लगी, सुना तुमने? यहाँ तमाशा मत कीजिए, घर जाइए। चलो चलते हैं। ये है क्या? ये नल ठीक करने के काम आता है मैडम। मेरा एक दोस्त प्लम्बर है। इसमें आग लगाकर पाइपों में डालते हैं ताकि अगर उनमें दरार हो या छेद हो तो पता चल जाए। नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वो अपने आप बुझ जाएगी। आपने कहा ये चाल है। मेरे साथ ऐसी चाल कौन चलेगा? मैडम कोई गैंग हो सकता है। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? बदला भी हो सकता है। क्या बदला? क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हैं? जी हाँ, इस दुनिया में ऐसे लोग होते हैं मैडम, जिनके लिए बदला ही सबसे बड़ा इनाम है। मैं तो ऐसी बातें सोच भी नहीं सकती। हाँ, मैं समझ सकता हूँ मैडम। अब मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। मुझे यहाँ से अब चलना चाहिए। आप थोड़ा रुकिए ना, कुछ खा के जाइए। मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप मेरी गाड़ी में जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं खुली हवा में जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अपना नाम पता तो बताते जाइए, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं तो ईश्वर का एक अदना सा नौकर हूं मैडम, जिसने बस अपना काम किया। गुड नाइट। गुड नाइट। तुमने बहुत अच्छा काम किया वॉटसन। तुम्हारे पास वो तस्वीर है? नहीं, लेकिन जानता हूँ कहाँ है। तुम्हें पता कैसे चला? उन्होंने ही दिखाई, जैसा मैंने तुम्हें कहा था। मुश्किल ये है कि वो तस्वीर अब भी उसके पास है। तुमने अपना मौका खो दिया होम्स। नहीं, मैं कल सुबह ही उसके घर जाऊंगा। तुम वहां जाओगे? अपनी असली सूरत में, किंग के साथ। किंग के साथ? और तुम भी साथ चलोगे वॉटसन। आखिर हमारी जीत का कोई तो गवाह होना चाहिए। मुझे लगता है आज तुम चैन की नींद सोओगे होम्स। बिल्कुल, सफलता नींद आने की सबसे अच्छी दवा है। गुड नाइट मिस्टर शेरलॉक होम्स। आपको भी मिस्टर वॉटसन। होम्स, वो उससे प्यार नहीं करती होगी। अगर करती है तो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इससे योर मैजेस्टी को फिर कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है तो योर मैजेस्टी से नहीं करती, और अगर वो योर मैजेस्टी से प्यार नहीं करती तो वो इनकी शादी में रुकावट क्यों डालेगी? मिस्टर शर्लॉक होम्स, मेरे ख्याल से। हाँ, मैं ही मिस्टर होम्स हूँ। मेरी मालकिन ने कहा था शायद आप आएंगे। वो आज सुबह ही चेयरिंग क्रॉस से 5:15 की ट्रेन लेकर अपने हस्बैंड के साथ चली गईं। इंग्लैंड से चली गई? हमेशा हमेशा के लिए सर। सब खत्म हो गया। मुझे दो।
होम्स, ये दूसरी तस्वीर है। क्या मेरी बात सुन रहे हो? वो खत मेरे नाम लिखा है। माय डियर मिस्टर शेरलॉक होम्स, आपने अपना काम अच्छी तरह से किया। मैं आपके ऊपर पूरा यकीन कर बैठी। आग के नाटक से पहले मुझे आप पर जरा भी शक नहीं हुआ था, मगर फिर जब मुझे लगा कि मैंने खुद को धोखा दिया है तो अचानक याद आया कि महीनों पहले आपके बारे में मुझे खबरदार किया गया था। मुझसे कहा गया था कि अगर किंग ने कोई जासूस भेजा तो वो आप ही होंगे। फिर भी आपने मुझसे वो सब जान लिया जो आप जानना चाहते थे। उससे पहले भी जब सड़क पर लोगों की भीड़ ने मेरे मन में शक पैदा किया था, तब भी मैं एक दयालु बूढ़े पादरी के बारे में बुरा कैसे सोच सकती थी। लेकिन आपको मालूम नहीं कि मैं भी कभी एक्ट्रेस रह चुकी हूँ और वेश बदलना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, मैंने ही आपके घर तक आपका पीछा किया था, ये जानने के लिए कि आप ही वो शख्सियत हैं मिस्टर शेरलॉक होम्स। वो मैं ही थी जिसने आपको जोर से गुड नाइट कहा था। फिर मैं अपने नए हस्बैंड से मिलने टेम्पल चली गई। हमने छुपकर शादी की ताकि अगर किंग से बचना पड़े तो भाग सकें। आपके सामने आने का मतलब था कि हम भाग जाएं, क्योंकि आपके आगे कोई नहीं जीत सकता। आपके आने तक हम लोग जा चुके होंगे। जहां तक फोटोग्राफ का सवाल है, आपके क्लाइंट को फिक्र छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब मैं किसी और को चाहती हूँ और वो भी मुझे चाहता है, और वो उससे कहीं बेहतर है। किंग, अब जो किंग अब जो चाहे कर सकते हैं बिना उस शख्स की दखल अंदाजी के जिसके साथ उन्होंने बुरा बर्ताव किया। मैंने इस तस्वीर को अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखा था, बिल्कुल एक हथियार की तरह, ताकि यह हथियार मुझे किंग के खतरनाक इरादों से बचा सके। एक बात और, मैं अपनी एक दूसरी तस्वीर छोड़ रही हूं जो शायद वो रखना चाहें, और आपके लिए मिस्टर शेरलॉक होम्स मैं वही रहूंगी, एरेना नॉर्टन उर्फ एडलर। क्या औरत है, कितनी शानदार रानी बन सकती थी वो। कितने अफसोस की बात है कि वो मेरे स्तर की ना थी। जितना मैंने उस औरत को जाना है उस हिसाब से वो आपके स्तर से बिल्कुल अलग थी, योर मैजेस्टी। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सका। बल्कि ये कहिए मिस्टर होम्स कि इससे कामयाब कुछ नहीं हो सकता था। मैं जानता हूं कि वो वचन की पक्की है। वो तस्वीर अब उतनी ही सुरक्षित है जितनी जला दिए जाने पर होती। मुझे खुशी है कि योर मैजेस्टी ऐसा सोचते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं मिस्टर होम्स। मुझे बताइए मैं आपको क्या इनाम दूं। ये अंगूठी, योर मैजेस्टी के पास एक ऐसी चीज है जो पैसों से भी ज्यादा कीमती है। कहिए वो आपकी हुई। ये इरेना की तस्वीर? क्यों नहीं, ये आपकी हुई। तो अब मैं आदर के साथ योर मैजेस्टी से विदा लेना चाहूंगा। और इस तरह बोहेमिया राज्य के ऊपर बदनामी का दाग लगने से बच गया। और इसी सिलसिले में मिस्टर शेरलॉक होम्स एक औरत की चतुराई के सामने हार गए।
वो औरतों की चतुराई की कहानियां पहले रोज सुनाते थे, मगर काफी समय से मैंने वो बातें उनसे नहीं सुनी हैं। जब कभी भी वो एरेना एडलर की बातें करते हैं या उसका उदाहरण देते हैं, उनके चेहरे पर उसके लिए बहुत आदर के भाव आ जाते हैं। उनकी नजरों में वो पूरी स्त्री जाति की ताकत का प्रतीक है। वैसे उन्होंने कभी भी एरेना एडलर के लिए प्यार नहीं दिखाया है। उनके खुश्क जासूस दिमाग में ऐसी भावनाओं के लिए जगह कहाँ है? उनके लिए औरतें सिर्फ एक कारण है, प्रेरणा का, सुराग मिलने का। फिर भी वो उसकी तस्वीर अलग से रखते हैं। ताले में उनके लिए दुनिया में सिर्फ एक औरत है, खूबसूरत एरेना एडलर, चालाक, निडर और रहस्यमयी एरेना।